for today's class. First is scrotum, then second is testis. Okay. Scrotum को अपन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, 5 मिनट में खत्म करेंगे, because testis is very important topic theoretically, clinically. When you will go in surgery clinics, or you will become surgeon, or you become only MBBS doctor, you should able to diagnose what happens. Okay, what is the pathology related to the testis. Come. So this scrotum, it is yes. क्या हो रहा है यार तुम लोगों को? कितना बोलना पड़ेगा? साइलेंट. नहीं पढ़ना तो भी चुपचाप बैठे रहो. So scrotum, it's a pendular sac, okay, and it is also considered as the outpouching of your lower part of the anterior abdominal wall. It contains testis, epididymis, and the lower part of spermatic cord. Spermatic cord आप लोगों का हो गया ना? क्लास हुई है spermatic cord पे inguinal canal में? Yes. So what are the layers of scrotum from outside to inside? First, there will be skin, then dartos muscle, then external spermatic fascia, cremastic muscle and fascia, then internal spermatic fascia. If you compare with these layers with your anterior abdominal wall, तो कौन-कौन सी है इसमें? Skin है already, दोनों में है present. Then dartos muscle, it represents the superficial fascia. So dartos muscle, it is in the superficial fascia, and it is also known as the example of paniculus carnosus. Paniculus carnosus, वो क्या है? The muscle which are present superficially, like in hand, palmaris brevis, then facial muscles, okay, and dartos muscles. These are the example of paniculus carnosus. जब कभी भी तुम्हें palmaris brevis पढ़ाया होगा तो भी बोला होगा ये बात, तो तुम कनेक्ट भूल जाते हो, बार बार रिवाइज किया जाता है. So what are the different examples of paniculus carnosus? So muscle in superficial fascia, and there is another muscle you will study in head and neck region, that is the platysma. यहाँ पे ये वाली, okay. तो इसमें देखो आप, स्किन तो है, dartos muscle, superficial fascia, external spermatic fascia, external oblique muscle, अभी anterior abdominal wall से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग. Then cremastic muscle and fascia, it represents the internal oblique muscle. Then आगे इसके नीचे कौन सी मसल आती है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस. ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस स्क्रोटम में पास नहीं करती है, तो उसका कोई भी रिप्रेजेंट इसके अंदर नहीं है. ठीक है. देन इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, इट इज लाइक फेशिया ट्रांसवर्सली. ठीक है. सो दीज आर दी layers. Now what are the external features of scrotum? So this scrotum, it is developed by the labioscrotal swelling in two halves, left half and right half. Then they join in midline by a median ridge or raphe, and this ridge or raphe, median raphe, it extends on the ventral surface of the penis anteriorly and posteriorly towards the perineum and till the anus. So this is your median raphe of scrotum. It extends anteriorly on the ventral surface of penis and behind in the perineum and till the anus. Okay. Then skin of this scrotum, it is corrugated and the dark in color. So why corrugated? Because of presence of dartos muscle, or you can say rugosities. They are because of
dartos muscle, and this dartos muscle, it is also helps in temperature regulation. Okay? Then what is the other thing? Left half of scrotum, it hangs lower than the right half. Why? ये आपको पता होना चाहिए, because the left spermatic cord, it is longer than the right, or you can say एक और आंसर इसका ये तो है ही, साथ में एक और कि left testis it started when it descends from the posterior abdominal wall. Testis develop in the posterior abdominal wall. ठीक है, ये धीरे धीरे डिसेंड करता है स्क्रोटम की तरफ. So left testis it started first, it begins first. ठीक है, so these are the two causes why the left scrotum it hangs lower than the right half. Layers we have already seen: skin, dartos muscle, external spermatic fascia, then cremastic muscle and fascia, then last layer is internal spermatic fascia. These are the layer of scrotum. Now supply, yes, it is important. The whole scrotum, it is supplied by two segments. Okay, the L1 segment and the S3 segment. What are the nerves which are related to the L1 segment? Ilioinguinal nerve and genitofemoral nerve. And this ilioinguinal nerve and genitofemoral nerve, they supply the anterior 1/3 of the scrotum. Okay, this part is the anterior 1/3 of the scrotum. This is posterior 2/3 of scrotum, and this line, ventral axial line, it divides in anterior 1/3 and the posterior 1/3. So this anterior 1/3, it is supplied by the L1 spinal segment. Okay, L1 spinal segment, and these nerves are ilioinguinal nerve and genitofemoral nerve. Then this posterior 2/3 part, it is supplied by posterior scrotal branch of perineal nerve. Again, the spinal segment is S3, and perineal branch of posterior cutaneous nerve of thigh. ठीक है, so posterior 2/3, it is supplied by the posterior scrotal branch and the perineal branch of posterior cutaneous nerve of thigh. ठीक है, and there is other muscle in superficial fascia, that is the dartos. It is supplied by the sympathetic fibers. They are coming through the genitofemoral nerve. And this, ये पोपली के पीछे वाला स्टूडेंट स्टैंड अप, कुछ तो कुछ चलना चाहिए ना. यस, आप सही चले क्लास. So now supply anterior 1/3, it is supplied by L1 segment, posterior 1/3 by S3 segment, ilioinguinal nerve, genitofemoral nerve. अभी एक दो और उठेंगे, फिर और साइलेंस चलेगा क्लास में. यहीं वाले आसपास वाले ज्यादा स्माइल मत करो. ठीक है, posterior 2/3, it is supplied by posterior scrotal branch of perineal nerve and the perineal branch of posterior cutaneous nerve of thigh. Yes, what do you want? Sorry. Okay, given sorry. Now coming to the next topic, that is testis. When you spelling आप लिखते हैं TESTIS, that is the singular. जब आप लिखते हो TES, that is the plural. ठीक है, तब both testis की बात कर रहे हैं आप. Now testis is a male gonad, okay, and they are 2 in number, okay, situated in the scrotum. ठीक है, homologous to the ovary in female, okay, develop in the posterior abdominal wall. ठीक है, posterior abdominal wall में develop हो रहे हैं. किससे हो रहे हैं? Median, genital ridge. Embryology के अंदर जब
मेल जेनाइटल सिस्टम का डेवलपमेंट होगा जब आपको बताएंगे, ठीक है। डॉक्टर अभिलाषा की एमब्रियो क्लासेस होती ना, उसमें मेल जेनाइटल सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। लेकिन इतना तुम्हें हल्का हल्का नॉलेज होना चाहिए कि टेस्टिस डेवलप कहाँ हो रहा है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर हो रहा है, ठीक है। किससे हो रहा है? जेनाइटल रिज से हो रहा है। जितना भी पार्ट है इसके टेस्टिस के एंड मीडियल टू मीजोनेफ्रोस, जितने भी पार्ट हैं इसके टेस्टिस के, दे आर डेवलप बाय दी जेनाइटल रिज। मैं बताऊंगा क्या क्या अदर फीचर्स हैं, एक्सेप्ट दी spermatogonias or the you can say the germinal cells, they develop by the PGCs, primordial germinal cells, ठीक है। ये आपको एम्ब्रियो में पढ़ाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको ओनली इनपुट दे रहा हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट इट इज डेवलप बाय दी जेनाइटल रिज, देन जर्मिनल सेल्स से क्या बनेगी? दीज स्पर्मेटोजोआज, फिर स्पर्मेटोगोनिया दे डेवलप इन दिस स्पर्मेटोजोआ लास्ट में, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स, the testis, it is oval in shape, okay. There are two poles, upper pole, lower pole, upper and lower pole. They are convex, smooth. Upper pole, it gives attachment to the spermatic cord, okay. Then there are two borders, anterior border and posterior border. Anterior border, it is covered by the layer of peritoneum. It is known as tunica vaginalis. क्या बोलते हैं इसको? Tunica vaginalis. The anterior border, it is fully covered, anterior border and the two surfaces, medial and lateral surface. Medial and lateral surface and anterior border. Anterior border, it is fully covered by the tunica vaginalis. Then medial surface, it is covered by tunica vaginalis, lateral surface. But the posterior border, it is not completely covered by this tunica vaginalis. जहां पे epididymis का attachment है, no, it is already 15. कम कैब वालों को बोलो ना टाइम से चले। Okay, so anterior border, it is covered by tunica vaginalis and two surfaces, medial and lateral surface. अभी आपको समझ में तो आने वाला नहीं है, बस अटेंडेंस मिल जाएगी, ठीक है। ओके, two poles, upper pole and lower pole, two borders, anterior border and posterior border, two surfaces, medial and lateral. And then these scrotum, they are hanged obliquely in the scrotum, ठीक है, obliquely in scrotum. अब कैसे obliquely है? The anterior pole, it is forward and laterally. The lower pole, it is backward and medially, like this, ठीक है। The testes, they are hanged in the scrotum obliquely. The upper pole, it is forward and laterally. Lower pole, it is backward and medial, ठीक है। So what are the dimensions? The length of testis, it is 4 to 5 centimeter. Then width, it is 2.5 centimeter. Then anterior-posterior diameter, like this, ये वाला anterior-posterior diameter, length 4 to 5 centimeter, oval in shape है ना. Then width, like this, it is 2.5 centimeter, and anterior-posterior diameter, it is 3 centimeter. Weight, it is 10 to 15 gram. Okay. Then साइड डिटर्मिनेशन, आपके एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर आपको किसी भी स्टूडेंट को ये जरूर पूछ लेते हैं कि कौन सी साइड का है, और बड़ी ट्रिकी है, इसलिए पूछते हैं आपसे वो। तो आप कैसे इसको साइड डिटरमाइन कर पाएंगे टेस्टिस का, ये कौन सी साइड का है? ऐसे ट्रे में रखा है तो आपको बोल देंगे यस, होल्ड इट, एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटरमिनेशन बताओ इसकी। तो कैसे बताएंगे आप इसका? एक वो है फंडा, दी स्पर्मेटिक कोड, इट शुड बी इन अपपर पोल, ये तो आपको पता अटैच्ड है।
but mainly epididymis. Epididymis, it should be on posterior border, and there is one sinus. There is one sinus, उसको बोलते हैं sinus of epididymis, ये वाला, जहां पे epididymis and testis के बीच में गैप है. It should directed laterally. ये लास्ट वाले सुन लो फिर. Yes, you read. खड़ा जा. So this sinus of epididymis, it should be directed posterolaterally. Posteriorly epididymis है, then there will be gap between the testis and the epididymis. ठीक है? And that is known as sinus of epididymis. And this gap, it should be laterally, posterolaterally. Epididymis पीछे होना चाहिए and the sinus should be laterally. ठीक है? इस तरह से आप इसकी साइड डिटर्मिनेशन कर पाओगे. Now coverings of testis. If you say that the testis, it is covered by the scrotum. With the scrotum, you will see all these coverings. With the scrotum. यदि scrotum को remove कर दें, then there will be 3 tunicas. Tunica vaginalis, tunica albuginea and tunica vasculosa. But with the scrotum बात करेंगे आप, तो क्या क्या मिलेगा from outside? Skin, already, इससे तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा फिर. Skin, then dartos muscle, then Colles fascia, fascia भी आता है, जो डी fascia का वो चल रहा है, आप जब पेरिनियम में पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे. Then external spermatic fascia, cremastic muscle and fascia. यहाँ तक तो होगा ये कौन सा वाला पार्ट? Internal spermatic fascia. ये तो वाला पार्ट होगा scrotum से related. Then 3 actual covering of the testis. These are tunica vaginalis, tunica albuginea and tunica vasculosa. Tunica vaginalis क्या है? It is a fold of peritoneum. It is a fold of peritoneum. तो जब भी टेस्टिस डेवलप हो रहा है तो जो पेरिटोनियम है, एब्डोमिनल पेरिटोनियम, ये इसके एंटीरियर साइड में इस तरह से रहती है बेटा. ठीक है? टेस्टिस ऐसे है. यदि मैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की बात करूं तो ये दिस इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, या मेरी साइड से बताऊं, दिस इज पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. यहाँ पे टेस्टिस डेवलप हो रहा है, यहाँ पे पेरिटोनियम है. तो टेस्टिस ये क्या है? रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है. आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, किडनी, ये वो, अभी रिट्रोपेरिटोनियल बताया होगा, कुछ जाइगोसिस के थ्रू सेकेंडरी रिट्रोपेरिटोनियल वगैरह वगैरह पढ़ लिया होगा तुमने. यस, गुड. देन दिस पेरिटोनियम फोल्ड, इट इज एंटीरियरली. फिर क्या होगा? ये टेस्टिस ये इसमें पोस्टीरियरली इन्वेजिनेट करता है, पीछे से इसके अंदर घुस रहा है. मान लो आप एक बलून है, बलून ऐसे बलून है, पीछे से इसको इसमें किसी चीज को फिट करो तो क्या होगा? शर्मा जी खड़े हो जाओ. फिर क्या होगा? तो इसकी 2 लेयर ऐसे ऐसे लेके जाओगे तो ये 2 लेयर्स बच जाएंगी एंड देयर विल बी सम स्पेस आल्सो. तो 2 लेयर कौन सी हो जाएंगी ट्यूनिका वेजाइनलिस की? एक पैराइटल एंड एक विसरल, जो आप हर जगह पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है? ये ट्यूनिका वेजाइनलिस कहां से आई? पेरिटोनियल फोल्ड है, ये ऊपर से आया है. अपन डिसेंड ऑफ टेस्टिस पढ़ेंगे जब भी मैं बताऊंगा. तो ये साथ साथ इसके टेस्टिस के थ्रू आई, थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल. ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसस वेजाइनलिस. इसमें आने के बाद में ट्यूनिका वेजाइनलिस. ओके? तो ये पीछे से टेस्टिस इसमें इन्वेजिनेट किया. मान लो एक बलून है, ऐसे बलून, उसके अंदर पीछे से मैं कुछ ऐसे इस तरह से घुसा दूं. ठीक है? तो मैं ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया. अभी देखना एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तुम्हें. तो इसका एंटीरियर बॉर्डर भी इससे कवर्ड है. इसकी दिस ओवल शेप्ड बेटा, ये इस तरह से दिखा, ऐसे कर लेते इसको. तो इसकी मीडियन एंड लेटरल सरफेसेस भी कवर्ड होगी, बट स्लाइटली पोस्टीरियर सरफेस इट इज अनकवर्ड. ठीक है? क्योंकि ये खुद ही पीछे से आगे की तरफ गया है. यहाँ पे क्या आ जाएगा? एपिडिडाइमिस. So the area which is covered by the epididymis, it is uncovered by this tunica vaginalis. और tunica vaginalis क्या है? Processus vaginalis का ही पार्ट है. Processus vaginalis क्या है? It is a fold of peritoneum. ये तुम्हें समझ में आना चाहिए. Fold of peritoneum जो आपके टेस्टिस जब डिसेंड करता है उसके साथ साथ में चलता है इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू. ठीक है?
टिल दी स्क्रोटम, एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम साथ साथ चलता है। तो तुम्हें कंजेनाइटल हर्निया बताया होगा मैम ने, तो बताया होगा कि प्रोसेसेस वेजाइनलिस यदि वहां पे ओब्लिटरेट नहीं होती है तो देयर विल बी कंजेनाइटल हर्निया। तो डिसेंड ऑफ टेस्टिस के साथ साथ में ये आई है प्रोसेसेस वेजाइनलिस, ठीक है। तो ये आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जानी चाहिए, और यदि क्लोज नहीं हुई तो इंटेस्टाइनल लूप इसके साथ आने लगेंगे। तो दैट इज द कंजेनाइटल हर्निया। पढ़ाया है ना, समझ में आया था, अब आया है, आ रहा है। पेरिटोनियन फोल्ड ऐसे आया, वो भी चल के आ रहा है इंग्वाइनल कैनाल में, टेस्टिस भी चल के आ रहा है, टेस्टिस यहां से है, बट ये बाद में क्या हो जाती है, ओब्लिटरेट हो जाती है। ठीक, ओब्लिटरेट होने के बाद में ये क्या बन जाती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, बस टेस्टिस तक ही रहती है, ऊपर ओब्लिटरेट होगी तो ये नॉर्मल थिंग, इसके अंदर अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहूँ ये ओब्लिटरेट ही नहीं हुई, ये ऐसे खुली है तो एक स्पेस बन गया, स्पेस बन गया तो इंटेस्टाइनल लूप्स आ सकते हैं उसमें से, तो दैट विल बी कंजेनाइटल हर्निया। ओके, तो देयर आर 3 कवरिंग्स। ट्यूनिका वेजाइनलिस समझ में आ गया कहां से आया है? गुड। देन इट हैज 2 लेयर्स, पैराइटल एंड विसरल। पैराइटल एंड विसरल भी कैसे बन गई ये भी पता लग गया तुम्हें, क्योंकि ये पीछे से इन्विजिनेट किया है ना, इस फोल्ड में ऐसे जाकर के। तो देयर इज द लेयर व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द टेस्टिस, दैट इज विसरल लेयर, एंड दिस इज पैराइटल लेयर, एंड इनके बीच में स्पेस भी रहेगा। ठीक है, ओके। इस स्पेस का भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, चलो यहीं बता देता हूं। इसमें क्या होता है, इफ देयर इज एनी ट्रोमा एंड इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, सो देयर आर चांसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन दिस स्पेस। जैसे आप प्लूरल में प्लूरल फ्लूइड, कार्डियक में पेरिकार्डियल फ्लूइड, यहां भी आ जाता है। इसके अंदर यदि आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो दैट इज नोन एज हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोसील। ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन हो गया। Now the second layer, so this is the your first layer, tunica vaginalis की parietal layer, then this is visceral layer. In between this is the space cavity of tunica vaginalis, ठीक है। इसके अंदर जाकर क्या भर जाता है, fluid, and that is known as hydrocele. Okay, now just below this visceral part of visceral layer of tunica vaginalis, there is another layer that is known as tunica albuginea. It is fibrous layer, and it covers again in the all around. ठीक है, but in posterior side में, on the posterior surface, posterior border of this testis, it become a septum. थोड़ा सा थिकन्ड होने के बाद में इट बिकम्स अ सेप्टम, एंड दैट सेप्टम इट इज नोन एज मीडियास्टिनम ऑफ टेस्टिस। दिस एरिया, ये लाइनियर, ये वाला नहीं बेटा, ये वाला एरिया, ये वाला जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जस्ट बिलो द फाइब्रस लेयर। हाँ, दिस ट्यूनिका वेजाइनलिस यू कैन पील ऑफ, आपको एक डायग्राम में दिख भी रहा होगा, यस, देखो यहां से उतार रखा है। बट ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टेस्टिस एंड वेस्कुलस आल्सो, बट लेयर्स में इसको बताते ही हैं, ठीक है। इट इज स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ टेस्टिस, so it is fibrous layer, it covers the testis, behind on the posterior border it is thickened and form a septum. This is known as mediastinum of testis. यहां तक समझ आया? ये अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन जब टेस्टिस का आता है इस तरह से आता है, इसकी स्ट्रक्चर, देन डिसेंड ऑफ टेस्टिस, देन क्लिनिकल एनाटॉमी। टेस्टिस फुल क्वेश्चन आता है तुम्हारे, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ लेना। अब ये स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं अपन, लेयर्स में बात की, ट्यूनिका वेजाइनलिस, देन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, white fibrous layer, posteriorly it is thickened, form a septum like thing, that is known as mediastinum of testis. Okay, mediastinum of testis, and from mediastinum of testis
there are septa which goes anteriorly, ये posterior तो anteriorly in radial fashion ऐसे, ठीक है? तो वो किसमें, then these septa they divide this testis in multiple lobules. So there are 200 to 300 lobules in the testis. Okay? These are the lobules. So these are the septa, and these are the lobules. Around 200 to 300 lobules in the testis. यहां तक क्लियर है सभी को स्ट्रक्चर में? एक कवरिंग होगी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, 2 लेयर, देन फाइब्रस लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. Tunica albuginea, posteriorly it becomes the septum ridge, then it ridge gives septas inside the testis. Anteriorly it divides this testis in the multiple lobules, testicular lobules. They are number कितना होगा इनका, 200 to 300. Now every lobule, this is the lobule, this is the lobule, this is the lobule, every lobule have around 2 to 3, or some book says 4 to 5, around 4 seminiferous tubules. Seminiferous tubules. And इन्हीं seminiferous tubules में क्या डेवलपमेंट होता है? आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ. ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस. यहां तक समझ में आ गया? अब 200 to 300 lobules, around 4 seminiferous tubules in one lobule. ठीक है? In one lobule. ठीक है? And one seminiferous की जो लेंथ है that is 60 centimeter. तो टोटल आप बनाएंगे तो it will become around 500 meters. 500 meters. ठीक है? ये डेटा टाइप की चीज है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो ठीक, बट इतना याद रहना चाहिए. Lobules 200 to 300, then seminiferous tubules 3 to 4, 4 to 5. Okay, 4 तो बोल ही देना. ठीक है? Coiled structures, they are the seminiferous tubules, and in seminiferous tubules में आपका spermatogenesis होता है. फिर क्या हो रहा है? ये जो seminiferous tubules हैं, ये जो seminiferous tubules, अगला वाला ले लो. Seminiferous tubules, इसकी 4 से 5 बताया मैंने आपको. They will join like this, सभी join कर लेंगे, and they form a one straight tubule. This is the straight tubule. तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, straight tubule के अंदर spermatogenesis नहीं होता है. ठीक है? ये तो यहां से क्या करेगी, स्पर्मेटोजोआ को यहां से ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है इधर. ठीक है? Then these straight tubules again goes in this area, mediastinum of testis, open in the plexus of the tubules. ठीक है? And this plexus, it is known as rete testis. ठीक है? Rete testis. ये है एक network of tubules. ठीक है? And from this network of tubules, rete testis, उसके बाद में क्या होगा? Yes. उसके बाद में क्या होगा? There are some efferent tubules. The efferent tubules, they arise and form the head of epididymis. So this is the epididymis. It has head, body and tail. ठीक है? तो head के अंदर क्या होगा? Multiple tubules है, coiled multiple tubules. They are forming the efferent tubules. They are forming the head of epididymis. But in area of body, these multiple efferent tubules, they join and form only one tortuous tubule, that is known as duct of epididymis. That is known as duct of epididymis. ये वाले सिंगल बन जाती है फिर ये यहाँ पे टेल तक. ओके, बॉडी एंड टेल के अंदर it becomes single duct of epididymis. Okay, now this duct of, after the tail, it will become the ductus deferens जो आपने पढ़ रखा है. वास डिफरेंस और स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट है ना, वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस. वास डिफरेंस क्यों बोलते थे इसको पहले?
कुछ बताया आपको ऐसा? इनिशियली क्या हो रहा है, जब एनाटॉमी वो कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, या जो भी डिसेक्शन चल रहे, तो ये एक वेसल की तरह दिखाई दी, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज, ओल्ड नेम इसका वास्ट डिफरेंस है, बट इट इज डक्टस डिफरेंस। ओके, तो ये चलेगी चलेगी चलेगी, फिर ये जाएगी अंदर, कहां पे कनेक्ट करके, जब मेल जेनाइटल सिस्टम पढ़ेंगे अपन, उसमें देखेंगे अपन, ये जाएगी क्या, इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगी, सेमाइनल वेजिकल के वहां जाकर के इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगी, ठीक है। कहां ओपन होगी, प्रोस्टेट के अंदर, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर। तो ये समझ में आ गया, लेयर समझ में आ गई। पहले ट्यूनिका वेजाइनलिस, 2 layers, parietal and visceral, just below fibrous layer, that is tunica albuginea. Posteriorly it becomes a ridge or septum, that is the mediastinum of testis. From mediastinum of testis it gives multiple septa, it divides the testis in multiple lobules, 200 to 300 lobules, ठीक है, and each lobule has around 4 seminiferous tubules. Then these coiled seminiferous tubules, they are the site for the spermatogenesis. Then these seminiferous tubules, they join and form straight tubules, ठीक है, यहां पे जाकर straight tubules, then they open in the retted testis, the plexus of tubules. Then from the retted tubules there are some efferent ductules, ठीक है, on the posterior and superior part, they go and form the head of epididymis. Then in the body and tail it becomes single duct, that is known as duct of epididymis. Okay, and after the tail it is ductus deferens. समझ में आ गया? Okay, now third layer, this red color layer, that is known as tunica vasculosa. ये किससे बन रही है, ब्लड वेसल्स से बन रही है, and this tunica vasculosa it covers the all the lobules. यहां पे भी होगी, देखो this red color, ये testicular artery है, testicular artery divides and gives multiple branches, then these multiple branches they cover all these things and to the lobules also. Okay, and this layer it is known as tunica vasculosa. समझ में आ गया? 3 लेयर क्लियर? बार बार नहीं चलेंगे, देखो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टीरियल सप्लाई, टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है, कहां से आ रही है, कहां से एब्डोमिनल एयोटा से आ रही है, लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी एंड राइट टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है, एंड दीज टेस्टिकुलर आर्टरीज दे कम्स टू दी योर दिस टेस्टिस, divide in multiple branches, but there are 2 branches, median and lateral branch, they cover the whole testis, ठीक है। Then देखो इसमें दिखाई दे रहा है, they are dividing and covering this area and form the tunica vasculosa. तो tunica vasculosa formation में this arteries, testicular arteries. Now venous drainage it is more important than the arterial. जनरली आपका क्या होता है, आर्टीरियल आर्ट में देखो कोरोनरी आर्टरी इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना, एनीवेयर, बट वीनस ड्रेनेज इन द टेस्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? आपने कभी देखा होगा किसी पेशेंट, कोई वेरिकोसील करके पेशेंट आया है, वेरिकोसील जनरली कौन से साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, तो कॉजेज बताऊंगा, पहले यहां से चलते हैं, कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देयर आर 2 testicular veins, one testicular vein drain directly in the IVC, that is the right side testicular vein drain in IVC। डिफरेंस देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, टेस्टिकुलर आर्टरी तो एब्डोमिनल एयोटा की ब्रांचेस थी, सिंपल, इसमें क्या हो रहा है, राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इन इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इन लेफ्ट रीनल वेन, इसमें नहीं करने के बजाय ये यहां कर रही है, ठीक है। तो कैसे है, ये मल्टीपल वेन्स फ्रॉम टेस्टिस दे फॉर्म है पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, क्या बनाती है,
पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस अगेन द वीनस चैनल्स का एक क्या बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है अराउंड दी योर टेस्टिस। देखो ये रहा, दिस इज द प्लेक्सस ऑफ वेन्स। ओके, पेम्पिनिफॉर्म plexus again has the anterior part and the middle part and posterior part। ठीक है, anterior part it is around the testicular artery, middle part is around ductus deferens and posterior part it is isolated। अब ये पेम्पिनिफॉर्म plexus का भी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, एक सवाल तो आप लोगों के दिमाग में आया नहीं, जब ये डेवलप सर एब्डोमेन में हुए तो वहीं की वहीं क्यों नहीं छोड़ दिए इनको, क्यों इतना क्यों? हाँ, तो आपने पढ़ लिया होगा जब आपने नीट की तैयारी की होगी। ठीक है, जो अपना बॉडी टेम्परेचर इट इज 37 डिग्री, इज नॉट फेवरेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, टेस्टिस आगे स्क्रोटम में। अब ये गॉड ग्रेट साइंटिस्ट ने बनाया ये सारा। ठीक है, इसके अलावा भी एक थर्मो रेगुलेशन का एक और जो वो है, दैट इज दी पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। अब आप देख रहे हो टेस्टिकुलर आर्टरी कहां से आ रही है, एब्डोमेन से आ रही है, तो उसका ब्लड का टेम्परेचर एब्डोमिनल टेम्परेचर होगा। ठीक है, वीनस ड्रेनेज बाहर से जा रहा है तो टेम्परेचर उसका बाहर का होगा। तो जब भी काउंटर करंट मैकेनिज्म आप पढ़ते हो फिजियोलॉजी के अंदर, टेस्टिकुलर आर्टरी को एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस इट इज कवरिंग, तो क्या होता है, हीट एक्सचेंज होती है। टेस्टिकुलर आर्टरी के अराउंड पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है, तो क्या होगा, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म से। So with पेम्पिनिफॉर्म plexus it also helps in the thermoregulation। ओके, अब ये इनिशियली तो क्या होता है कि देयर आर 4 वेन। अब जब आप चलोगे इसके अंदर, ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस टेस्टिस से कहां जाएगा, आपकी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में जाएगा, देन कैनाल में जाएगा, देन डीप इंग्वाइनल रिंग में जाएगा, देन ऊपर तक जाएगा। कहां जाएगा, एक साइड में आईवीसी की तरफ जाएंगी। अब ये ऐसा थोड़ी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं 8-10 प्लेक्सस ही थोड़ी चल रहा है ऊपर तक, नहीं, ये प्लेक्सस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम कैसे हो जाएगा, ये प्लेक्सस इट बिकम 4 वेन एट दी सुपरफिशियल इंक्वाइनल रिंग तक क्या बन जाएंगी, 4 वेन लाइक दिस। ओके, देन डीप रिंग पे कितनी बन जाएंगी, ये 2, देन बियॉन्ड द डीप रिंग इट बिकम 1 टेस्टिकुलर वेन। ऐसा नहीं कि वो गुच्छा ही चल रहा है। ठीक है, ऊपर जाके एक सिंगल टेस्टिकुलर वेन बन जाएगी। तो लेफ्ट रीनल वेन ड्रेन इन द लेफ्ट रीनल वेन एंड राइट इन द इंफीरियर वेना केवा। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। लिम्फेटिक ड्रेनेज इट इज वेरी सिंपल, pre-aortic and para-aortic. The lymph node they are present anterior and on the lateral side, pre and para-aortic lymph nodes. So the lymphatic they drain in the pre and para-aortic lymph nodes. देखो, these are the lymph nodes, pre-aortic and these are the para-aortic lymph nodes. Okay. So lymphatic drainage, arterial supply and दी वीनस ड्रेनेज, कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा, ध्यान रखना। नाउ डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ये अलग से शॉर्ट नोट आता है आपको, कई बार टेस्टिस होल क्वेश्चन, देन दी स्ट्रक्चर कवरिंग, ये वो क्लिनिकल एनाटॉमी, डिसेंट वगैरह वगैरह। डिसेंट ऑफ टेस्टिस आपके एम्ब्रियो में भी पूछ सकते हैं, वैसे तो एम्ब्रियो का पार्ट है बट मैं कवर करूंगा यहीं पे इसको। ठीक है, एंड सेपरेट आपको शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। अब ये कैसे 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 हुआ, टेस्टिस कहां पे थे, स्क्रोटम में कैसे आए, दिस इज नोन एज डिसेंट ऑफ टेस्टिस। सो यू नो दिस टेस्टिस इट डेवलप्स बाय द जेनिटल रीज medial to mesonephros in the posterior abdominal wall. ठीक है, from there it comes through the inguinal canal and till the bottom of your scrotum. Okay, till the bottom of scrotum.
लेकिन उसके साथ साथ में ये क्या चल रहा है, दिस इज पेरिटोनियम एंड दिस इज पेरिटोनियल कैविटी, यहां से कवर कर लिया इसने, ठीक है, देख रहे हो आप, एंड ये भी साथ साथ चल रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। नॉर्मली ये चलता जा रहा, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आने के बाद में क्या हुआ, ये क्लोज हो गया। ये कौन सा क्या है, ये प्रोसेसस वेजाइनलिस, ये प्रोसेसस वेजाइनलिस, एंड यहां पर आकर ये ब्लॉक हो गया। यदि ये ओपन रह जाता तो क्या होता, इंटेस्टाइनल लूप भी इसके साथ में जाते। बट जब ये चल रहा है, टेस्टिस डिसेंड कर रहा है स्क्रोटम की टुवर्ड्स द स्क्रोटम, it is covered by the peritoneal fold that is known as processus vaginalis. It also comes through the your deep ring, then superficial ring, and till the scrotum. Then other than that, there is one fibromuscular band. It is known as gubernaculum of testis. Gubernaculum of testis. And this gubernaculum of testis, gubernaculum का मतलब होता है गाइड, ये इसको गाइड करता हुआ लाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इट इज अटैच टू द लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस एंड द बॉटम ऑफ स्क्रोटम। तो विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गुबर्नाकुलम द टेस्टिस दे आर डिसेंड, ठीक है। यहां देखो, ये जो पेरिटोनियल फोल्ड जो आया, इट बिकम द ट्यूनिका वेजाइनलिस, तो यहां पे ये क्लोज हो गया। तो ये क्या था, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस किसका पार्ट है, प्रोसेसस वेजाइनलिस का, तो ये इसके ऊपर रह गया, वन ऑफ द कवरिंग बन गया, ठीक है। एंड देन दिस इज गुबर्नाकुलम, फाइब्रोमस्कुलर बैंड, ठीक है। ये विशाम सिंह जी बोल रहे हैं, दिस इज पेरिटोनियम, दिस इज पेरिटोनियल कैविटी, इट इज कवरिंग एंड प्रोसेसस वेजाइनलिस गोइंग डाउन टुवर्ड द, दिस इज बॉटम ऑफ स्क्रोटम, दिस फाइब्रोमस्कुलर बैंड, ओके, यहां पे क्लोज हो गया एंड बिकम ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। अब ये कब स्टार्ट होता है ये भी पता होना चाहिए। ये स्टार्ट हो जाता है दी सेकेंड मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिनल लाइफ, वहां से डिसेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर, पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल से। फिर क्या होगा, ये थर्ड मंथ में कहां तक पहुंच जाएगा, इलियाक फोसा, यहां थे फिर यहां पे आ गए, इलियाक फोसा में आ गए, ठीक है। देन फोर्थ मंथ में कहां पाया जाएगा, डीप इंग्वाइनल रिंग, ये बेटा आपको लिखना पड़ेगा, ये टाइमिंग, ठीक है। सेकेंड मंथ में इट स्टार्ट, डिसेंड स्टार्ट, देन एट द थर्ड मंथ इट कम्स इन द इलियाक फोसा। पॉपुलर स्टैंड अप, गिव मी योर फोन। तो कुछ कंट होते हैं ना, परमानेंट होते हैं, दिखाओ। ये फोन से डिस्ट्रैक्ट मत किया करो मुझे। थर्ड मंथ पे इलियाक फोसा, यस बात है, मेरी बात हो गया, ठीक है। फोर्थ मंथ डीप इंग्वाइनल रिंग, सो दिस इज द डीप इंग्वाइनल रिंग, okay, then 7 months in the inguinal canal, deep inguinal ring, superficial inguinal ring, and बीच में जो पैसेज हो क्या है, inguinal canal। inguinal canal में कब रहेंगे, 7 months, okay, good। then 8 month पे कहां आ जाएगा, external inguinal ring और superficial inguinal ring। 9 month पे कहां आ जाएगा, scrotum में आ जाएगा, 9 month of intrauterine life में। At the birth, it will be in the bottom of scrotum। 9 month तक scrotum में एंट्री कर जाएगा, then scrotum। अब ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं बेटा, ये काम आएगा गुबर्नाकुलम टेस्टिस के, देयर आर सबसाइडरी टेल्स ऑल्सो। बस ये देख लो, PSI की तरफ, ASI की तरफ femoral बैंड है, इसका पेरिनियल बैंड है, स्क्रोटल बैंड है, ठीक है। तो दीज आर दी सम अपर अटैचमेंट, ये आपकी बुक में नहीं दिया इसलिए मैंने डाला, बस उसमें डायरेक्टली लिख दिया। जब मैं बात करूंगा किसकी, एक्टोपिक टेस्टिस की, कि ये टेस्टिस जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये रह गया, एब्डोमेन में भी रह गया, और आपकी पेरिनियम में चला गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ चला गया। वो क्यों हुआ,
तो इसका एक द कॉज है, वन ऑफ द कॉज दैट इज दी देयर आर मल्टीपल सबसाइडरी टेल्स ऑफ गुबर्नाकुलम। और वही भाई साहब गाइड कर रहे हैं, अब गाइड ही मिस गाइड कर रहे, इधर उधर इधर, ठीक है। तो वन ऑफ द कॉज, ये भी तुमसे बहुत पूछते हैं कि मिश्रा जी आपको बोला मैंने बैठने के लिए, यू शुड आस्क मी। अपने आप से कुछ नहीं करने का। स्मार्ट लोग मुझे पसंद ही नहीं है, एवरेज लोग मेरे जैसे मुझे पसंद है। नहीं, नो, नॉट अलाउड। नाउ what are the causes of descent of testis? Descent of testis क्यों, what are the different factors for the descent of testis? ये क्या आपको इसमें लिखना है, क्या क्या है? डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल, ठीक है। जब बॉडी वॉल की डिफरेंशियल ग्रोथ होगी, कुछ ऑर्गन्स बड़े, कुछ लीवर, आपका इंटेस्टाइन का भी पढ़ोगे जब फिजियोलॉजिकल हर्निया होता है, लीवर बड़ा है इनिशियली, कुछ ऑर्गन्स बड़े होते हैं, तो दैट इज दी वन ऑफ द कॉज, डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल। देन maternal gonadotropins. Maternal gonadotropins also helps in this intra-abdominal pressure, ठीक है। Intra-abdominal temperature also. These are the causes because of that descent of testis occur, ठीक है। Then contraction of this guide gubernaculum testis. Then टेस्टिकुलर हार्मोन्स, टेस्टिस के क्या फंक्शन है, एक तो स्पर्मेटोजोआ, देन टेस्टिकुलर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। देन टेस्टिकुलर हार्मोन, देन अनदर थिंग दैट इज द कैल्शियम जीन रिलेटेड पेप्टाइड CGRP, दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर इट इज जनरेटेड बाय और द सिक्रेटेड बाय जेनाइटोफिमोरल नर्व। सो दीज आर द कॉजेज। तो आपको डिसेंट ऑफ टेस्टिस जब बात कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू मेंशन और यू हैव टू राइट, वाइवा है तो यू हैव टू से और स्पीक, ठीक है। दीज आर द कॉजेज ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस। क्या क्या है? डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल, मैटरनल गोनेडोट्रोपिन, देन इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, इंट्राएब्डोमिनल टेम्परेचर, टेम्परेचर का मैंने बता दिया, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो इसको आना पड़ा। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ gubernaculum, fibromuscular band attached to the lower pole of the testis and to the bottom of scrotum. Then testicular hormones, calcium gene related peptide. These are the causes. मैं दोबारा रिपीट इसलिए किया है कि ये पूछा जाता है, what are the causes for descent of testis? Descent of testis तो ठीक है, theoretical लिख दिया आपने और causes लिख दिए, वाइवा में भी पूछ लेते हैं, जब टेस्टिस आपके हाथ में है टेस्टिस एंड वो पूछ लेते हैं यस टेल मी दी कॉजेज फॉर डिसेंट ऑफ टेस्टिस। नाउ कमिंग टू दी वेरिकोसील। अब वेरिकोसील में क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, मैंने बोला था वीनस ड्रेनेज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लिनिकल, ठीक है। तो वेरिकोसील क्या होता है, दिस इज दी वेन्स और दी वेन्स ऑफ पेम्पनिफॉर्म प्लेक्सस, दे बिकम टॉर्चुअस, डायलेटेड एंड इलोंगेटेड, ठीक है। tortuous, dilated and elongated, and it is commonly on the left side, it is commonly on the left side, ठीक है। so this, अब ये पूछते हैं कि इसमें होगा क्या, सिम्टम क्या होगा पेशेंट को, सिम्टम क्या होगा पेशेंट को, क्या होगा, वेग सिम्टम्स होंगे उसको, स्लाइटली जैसे ड्रैगिंग पेन टाइप के सिम्टम्स होंगे स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। ड्रैगिंग पेन है, जैसे कुछ खींच रहा है टाइप, ठीक है। इस तरह के वेग सिम्टम्स पेशेंट को होंगे बिकॉज ऑफ दिस पेम्पनिफॉर्म प्लेक्सस वेन्स, दे बिकम टॉर्चुअस, डायलेटेड एंड इलोंगेटेड। दिखाई दे रहा है, एक इंसिजन लगा के देख रहे हैं। एंड व्हेन द सर्जन पाल्पेट द स्क्रोटम, इट विल फील लाइक द बैग ऑफ वर्म्स, जैसो बैग ऑफ वर्म्स, समझ गए। अभी ऐसा क्यों, इट इज कॉमन, मैंने बोला कि इट इज कॉमनली ऑन द लेफ्ट साइड। अब इसमें ये नहीं स्पर्मेटिक कॉर्ड लेफ्ट साइड वाली लॉन्ग है, ये वाला आंसर मत देना वहां पे, ठीक है।
वीनस ड्रेनेज में हमने बात करी थी, राइट वीनस वेन गोज इन आईवीसी, वहां प्रेशर कम है, इट गोज इन दी एक्यूट एंगल इन दी लेफ्ट रीनल वेन, वन ऑफ द कॉज। देन लेफ्ट साइड में आपके सिग्मोइड कॉलम भी इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे ना, सिग्मोइड कॉलम में क्या हो, फीकस मटेरियल कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है, तो फीकस मटेरियल उसमें इकट्ठा रहता है, उसके प्रेशर से भी लेफ्ट रीनल वेन पे प्रेशर रहता है, बिकॉज ऑफ दैट दीज टेम्पनिफॉर्म प्लेक्सस दे आर डायलेटेड टॉर्चुअस। यदि किसी को दबा दिया जाए तो स्टेगनेंट रहेगा ना ब्लड वहीं पे ही, ठीक है। दी कॉन्स्टिपेटेड स्टूल इन दी सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। फर्स्ट कॉज क्या है, दिस लेफ्ट रीनल वेन इट गोज open in the left renal vein at acute angle, then the constipated stool in the fecus material in the sigmoid colon, then एक और है, that is the nut cracker effect। nut cracker effect भी तुम्हें समझना जरूरी है, आपकी बुक में दिया नहीं है। हटो थोड़ी क्लास ले रहा हूं बच्चों की, हाँ ठीक है, ओके चलो बैठो तीनों। व्हाट इज नट क्रैकर इफेक्ट, समझना इसको बेटा। यहां से देखो, सी नट क्रैकर मतलब आपने कभी वो अखरोट वगैरह किसी ऐसे तोड़ा ऐसे करके, ठीक है, ठीक है, तो किसी चीज के बीच में फंसाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, दिस इज योर एब्डोमिनल आयोटा, दिस इज योर एब्डोमिनल आयोटा, और यहां से क्या हो रहा है, देर आर 3 आर्टरीज इन दी मिड लाइन, एक सीलियक ट्रंक होता है, एक सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है, एक इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है। तो यहां से आ रही है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, बट ये लेफ्ट रीनल वेन इट इज लॉन्गर एंड इट इज गोइंग कहां पे जा रही है, लेफ्ट किडनी की तरफ। तो जस्ट बिलो दिस सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, कंप्रेशन ऑफ लेफ्ट रीनल वेन बिटवीन दी सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड आयोटा। तो यहां पे तो आयोटा आ गई है, तो यहां से सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है, तो इसके बीच में से ये लेफ्ट रीनल वेन जा रही है, तो इसको कंप्रेशन कर रही है, ठीक है। वन ऑफ द कॉज ऑफ वाई वेरिकोसिल, लेफ्ट वेरिकोसिल इट इज कॉमन, नट क्रैकर इफेक्ट, ये भी एक कॉज है। और क्या हो सकता है, इफ देयर इज कार्सिनोमा ऑफ किडनी, ठीक है, तो भी वो वेन को कंप्रेस करेगा। अब these are the some clinical anatomy about related to this। हाइड्रोसील हमने ऑलरेडी बात कर लिया, डिसेंट ये बात कर लिया हमने, फ्लूइड एक्युमुलेशन वगैरह वगैरह। इसका एक चीज है कि कैसे आपको रिमूव करना है, हाउ टू रिमूव दिस फ्लूइड, क्या कैसे करेंगे, एक ट्रोकार इंट्रोड्यूस करेंगे थ्रू दी स्क्रोटम, स्क्रोटम के थ्रू ट्रोकार इंट्रोड्यूस करेंगे, विच आर दी लेयर्स यू विल पियर्स। यहां से चलेंगे तो किन, सबको पता है लेयर्स कितनी है, तो सबको पता है, डार्टोस मसल, देन कोलिस फेसिया, देन एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, क्रिमेस्टिक फेसिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, ट्यूनिकल मसल, पैराइटल लेयर। देन ये फ्लूइड इसको ड्रेन कर लेंगे, ठीक है। यस, क्रिप्ट ऑर्किड एंड एक्टोपिक टेस्टिस, ठीक है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म एंड एक्टोपिक टेस्टिस, इसमें क्या डिफरेंस है, ये कंसेप्ट बेटा समझ लो। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म में तो क्या होता है कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस हुआ नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, लाइक मैं कहूं पॉपली, अब मैं समझाता हूं तुम्हें व्हाट इज एक्टोपिक टेस्टिस एंड दी व्हाट इज क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। पॉपली चला हॉस्टल से, नॉर्मल पाथ है इसका, क्लास के लिए चलते आना, फिर बर्गर फॉर्म आएगा बीच में, देन नीचे वाले रेड टैप क्या बोलते हैं इसको, कौन सी है, कौन सी है ये, कैंटीन, कैंटीन, देन कैफेटेरिया, इसमें ये नॉर्मल पाथ है इसका, वहां से चलता चलता आया बर्गर फार्म, कैंटीन, कैफेटेरिया, देन क्लास, ठीक है। तो दो देयर आर टू चेक पॉइंट,
एक सुपरफिशियल डीप इंग्वाइनल रिंग कैंटीन का गेट था, एंड ये वाला गेट है सुपरफिशियल। ये है नॉर्मल, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, एंड आना चाहिए यहाँ पे, एंड दिस क्लास इज, मैंने नहीं बोला, स्टूडेंट अपने आप समझे कितना लॉजिकल चल रहे हैं बच्चे, मतलब मैं समझ सकता हूं, मेरी क्लास समझ में आ रही है। ओके ठीक है, दिस इज नॉर्मल। अभी इस नॉर्मल पाथवे में, ये तो नॉर्मली डिसेंड हो रहा है, नॉर्मल पाथवे में ये भाई साहब वहां से निकले, थोड़ी देर वहां बात की गार्ड से, और क्या चल रहा है गार्ड साहब, क्या चल रहा है, फिर ये बर्गर फार्म पे बैठ गए, नॉर्मल पाथ है इसका, बर्गर फार्म पे बैठ गए, एब्डोमिनल कैविटी में रह गया टेस्टिस। देन ये बेटा ओनली समझाने के लिए है, ठीक है। देन क्या होगा, आगे जाकर के अब कैंटीन के गेट पे डीप इंग्वाइनल रिंग, वहां पे वहीं पे रह गया, यार जाऊं नहीं जाऊं, अंदर जाऊं नहीं जाऊं, वहीं पे खड़ा हो गया। दैट इज द अरेस्ट एट द डीप इंग्वाइनल रिंग, किसका, टेस्टिस का, डीप इंग्वाइनल रिंग। देन फिर वो रास्ता जो है कैंटीन वाला, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, उसमें से कहीं बातें करते करते ऐसे चल रहे हैं, कोई कॉफी पिएगा, बैठ गए, इंग्वाइनल कैनाल में रह गए, ठीक है, बीच में बोलना नहीं, अलाउड नहीं है, ठीक है। देन फिर इस गेट पे आगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, यहां पे लगा है गेट, क्लास है शेखावत सर की, आए भाई साहब लेट, तो मैंने कह दिया नो, यू आर नॉट अलाउड, तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पे अटक गए, ठीक है। तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस, स्क्रिप्ट ऑर्किडिज्म क्या है, अरेस्ट ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन दी नॉर्मल पाथ, abdominal cavity, then superficial inguinal ring, then inguinal canal, then deep inguinal ring, then scrotum। अब scrotum के भी अपर पार्ट में रह गया, deep inguinal ring पे रह गया, superficial inguinal ring पे रह गया, and abdominal cavity में। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, अब समझाने की जरूरत है। तो क्या कहां हो सकता है, abdominal cavity close to the deep ring, then in inguinal canal, then superficial inguinal ring, then upper part of scrotum, bottom of the scrotum तक नहीं आया, तो ये it is in the normal path, it is in the normal path, ठीक है। एक्टोपिक टेस्टिस क्या है, अब ये भी एग्जांपल से बताऊंगा। अब ये तो था नॉर्मल पाथ, अभी दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, नहीं तो इसको वो कर देंगे। ये मिश्रा जी हॉस्टल में रहते हो, सिविलियन, ओके ओके, डे स्कॉलर, हॉस्टलर और कौन है, अपना ही कर ले क्या, ठीक है, ओके। देन एक्टोपिक टेस्टिस में क्या होता है, नॉर्मल पाथ इसका क्या है, हॉस्टल से निकला, बर्गर फार्म, रेड टैप, यहां पे आया, यहां पे आया, ये तो नॉर्मल। अभी क्या हो रहा है, ये भाई साहब निकले गेट से हॉस्टल के, एंड आने से बर्गर फार्म चले गए डेंटल कॉलेज, ठीक है, डेंटल कॉलेज चले गए। उसके बाद में क्या हो, डेंटल कॉलेज से इधर से घूम के एंड हो सकता है आपके वो नहीं वो क्या बोलते हैं, कौन सी, हनीड्यू, यस हनीड्यू कैंटीन में चले गए। तो क्या हो रहा है, ये जो कॉमन पाथ है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। आना कहां से चाहिए था टेस्टिस को, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, एब्डोमिनल कैविटी, इलियाक फोसा, डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, एंड डीप टू दी स्क्रोटम, दिस इज द नॉर्मल थिंग। अब इसमें से चले गए पीछे, ठीक है, कहां जा सकते हैं, सुपरफिशियल फेसिया ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अबव दी सुपर, यहां पे आ गए। आना क्या था, ये रूट था, यहां आ गए, तो इसमें क्या हुआ, माल डिसेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। नॉर्मल इसका जो उसको फॉलो नहीं किया इसने पाथ को, ठीक है। देन टुवर्ड द रूट ऑफ पेनिस, और यू कैन से द प्यूबिक सिम्फाइसिस, वहां भी जा सकता है। देन अपर थाई, यू कैन से दी इन द फ्यूमोरल रीजन,
वहां भी जा सकता है, ठीक है, एंड इन दी पेरिनियम ऑल्सो। सो दीज आर दी साइट्स और एक्टोपिक टेस्टिस। मतलब इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसके देयर आर सम बुक सेज देयर आर टू कॉजेज। एक तो मैंने ऑलरेडी बताया था, ग्यूबरनाकुलम टेस्टिस की सबसाइडरी टेल्स, मैंने बताई थी वो कहां कहां जा रही थी, उसके गाइडिंग में चला गया इधर उधर, ठीक है। एक है प्रोसेसेस वेजाइनलिस, सम बुक्स आल्सो सेज दिस प्रोसेसेस वेजाइनलिस आल्सो टेक पार्ट इन दिस एक्टोपिक टेस्टिस, ठीक है, क्योंकि वो तो पेरिटोनियल फोल्ड है, वो भी कहीं भी जा सकता है उसको फॉलो करके। सो देयर आर टू कॉजेज, ग्यूबरनाकुलम टेस्टिस एंड प्रोसेस वेजाइनलिस फॉर एक्टोपिक टेस्टिस। अब ये क्यों जरूरत है कि ये कहीं भी रह गया तो क्या जरूरत है? देयर आर टू कॉजेज, टू इंपॉर्टेंट थिंग। यदि कहीं भी रह गया तो एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिफोर प्यूबर्टी सर्जिकली यू हैव टू टेक दिस टेस्टिस इन दी स्क्रोटम, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, वहां पड़े पड़े क्या हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, ओके। इसलिए सर्जिकली आपको इसको नॉर्मली इसको स्क्रोटम में करना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्रिप्ट ऑर्किडिंग मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ये नॉर्मल पाथ में अटके पड़े हैं, डीप इन्वाइनल रिंग पे है, ये अपर पार्ट ऑफ दी स्क्रोटम में पड़े हैं, एब्डोमेन में पड़े हैं। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिमोरल एरिया में चले गए, थाई में, अपर पार्ट ऑफ दी थाई में चले गए, एंड ये पेरिनियल रीजन में चले गए। तो दीज आर दी टू डिफरेंट पोजीशंस। तो क्रिप्ट ऑर्किडिंग में फॉलोइंग नॉर्मल पाथ अरेस्ट इन दी इन बिटवीन, इसमें चले गए अदर देन दी नॉर्मल पाथ, ठीक है। ये आपकी बुक का डायग्राम है, ये। हाँ, कई बार क्या होता है, टॉर्सिन ऑफ टेस्टिस भी हो जाता है। टेस्टिस क्या होता है, ये घूम जाता है किसके, स्पर्मेटिक कोड के अराउंड, तो इसको इन्वर्जन भी बोलते हैं। आपकी बुक में टॉर्सिन है, इट्स ए इमरजेंसी सिचुएशन, आपको इमरजेंसी में लाना पड़ेगा, सर्जरी में सिवियर पेन होता है, तो इसको टॉर्सिन को आपको रिलैक्स करवाना है। तो इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली ओरिएंटेड, आपको बताया था मैंने कैसे होता है टेस्टिस, ये ओब्लिकली, और इसमें क्या हो रहा है, पोस्टीरियर पोल पे आपका एपिडिडाइमिस है, ये डक्टस डिफरेंस है, ये फिर एंटीरियर इन्वर्जन हो गया ऐसे डाउन, देन दिस इज एंटीरियर इन्वर्जन, दिस इज सुपीरियर इन्वर्जन, दिस इज एंटीरियर, एपिडिडाइमिस एंटीरियरली आ गया, देन ये लेटरल इन्वर्जन, लेटरली साइड में चला गया एपिडिडाइमिस, ठीक है, एंड दिस इज लूप, इसमें लूप ही बन गया, तो दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। इट्स इमरजेंसी कंडीशन, इसमें आपको लाके सर्जरी इमरजेंसी में दिखाना है, सर्जन अपना काम करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी रिगार्डिंग द टेस्टिस। तो आपको क्या क्या देखना है, टेस्टिस फुल क्वेश्चन आता है तो इसका स्ट्रक्चर पूरी, ठीक है, देन उसके बाद में कवरिंग स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या देखना है, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ये बहुत फेवरेट है, एम्ब्रियो एंड ग्रोथ, डिसेंट ऑफ टेस्टिस नॉर्मली कैसे डिसेंड हो रहा है, वो की उसका टाइमिंग कब कब कहां, 2 मंथ पे स्टार्ट होता है, देन डाउन 3 मंथ पे आपका इलैक फोसा, 4 मंथ डीप इन्वाइनल रिंग, 7 मंथ इन्वाइनल कैनाल, 8 मंथ अपर पार्ट ऑफ स्क्रोटम एंड 9 मंथ स्क्रोटम, ठीक है। देन इसका क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको क्रिप्ट ऑर्किडिज्म एंड एक्टोपिक टेस्टिस भी लिखना है। जो बच्चे अच्छे से एक्टोपिक टेस्टिस का ये दो लिख सकते हैं, गुबरनाक्यूलम की सबसाइडरी टेल्स वगैरह एंड योर प्रोसेसेस वेजाइनलिस, तो थोड़ा अच्छा चलेगा, अदरवाइज ये लिख दोगे तो भी बेस्ट है, ठीक है। वेरिकोसील मैंने बता दिया, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड मोर कॉमन, क्यों है, डायलेटेड टॉर्चुअस वेन्स, ठीक है। हाँ, एक तो लेफ्ट रीनल वेन में एक्यूट एंगल पे करिए, एंड देन लेफ्ट सिग्मोइड कॉलन के अंदर कॉन्स्टिपेटेड स्टूल के कारण भी हो सकती है, और लेफ्ट रीनल कार्सिनोमा हो तो भी कंप्रेशन हो सकता है उसका, ठीक है, एंड नट क्रैकर इफेक्ट भी हो सकता है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड द आयोटा, यहां से भी रीनल वेन ऐसे आ रही है क्योंकि आईवीसी इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ आयोटा, ये है इसका लॉजिक, ये आयोटा, दिस इज आयोटा एंड यहां से आईवीसी, तो आईवीसी से निकल रही लेफ्ट रीनल वेन, ये आ रही है आगे से चल के आ रही है, देन यहाँ पे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का ओरिजिन हो रहा है, तो इनके बीच में ये
कंप्रेस हो सकती है लेफ्ट रीनल वेन। दिस इज द अदर कॉज, नट क्रैकर इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरिकोसील का। हाइड्रोसील का फ्लूइड एक्यूमुलेशन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड द ट्रॉमा टू द टेस्टिस इन बिटवीन द ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड पैराइटल। ठीक है, इनके बीच में देन ट्रोकार से निकाल दो। ठीक है, ओके, थैंक यू।